You know, on the eve of International Women's Day, tomorrow is International Women's Day, there could not be better words. There could not be better words coming from Harindra Singh. My friend Rahul Todi also has joined me. Rahul and I keep talking sport almost every second day. You know, when the Hockey India League thing was first announced, the tender was announced, and I remember Rahul telling me, microphone done, you know, I remember Rahul telling me, what do you think? Should we get into hockey? And obviously the answer was yes. And from there on to go and win the Hockey India League title for the inaugural season. He's got interest in hockey, in parasport, and he's invested in many other sports. Talk about it, that achievement. What did it mean to you? The inaugural edition, no one can take it away from you. Inaugural edition, champions of the Hockey India League. Thank you. And actually, they are the champions. You know, the players. We did our job. We selected a good team based on feedback. I think the only thing I did personally was have a decent auction where Shrijish and me, we fought a lot, but that was it. After that, it was the commitment of the team, the skills, and I think, winning is always great. And similarly, like Shrijish, I think when the Hockey India League started, and I shared this with you personally, that you know, for me also, nobody expected a team from Bengal to do much. I think a lot of eyes popped up that first a team from Bengal was there in the first edition itself. I think that itself was a bit of challenge to take that decision because it's not a greatly popular sport in Bengal. We all know that. Although historically the birth of hockey was in Bengal. The first hockey association was formed in Bengal. And recently we were in the event of Bengal hockey as well, where we spoke about it. But for whatever reasons, over the last few years, it moved to North India and other parts of the country. And this is where Hockey India, I would say Dilip sir, Bhola sir have done tremendous work, because now besides the players, Narendra Saab, I've had an experience to watch them, what goes behind the scene to ensure that the players are getting what they are, the infrastructure, starting from infrastructure, logistics, organizing the FHI Pro League so that they have enough playing time. Because that is one thing which we've seen, we talk about Indian football all the time, where our players don't get enough opportunity or enough game time. But you know what we saw in Hockey India, that there is enough game time for all the players. And look, Hockey India League came back after a hiatus of a few years. A lot has been learned from the past. I think Hockey India was very mindful of every aspect of it, and there were a lot of learnings as well. Always will happen. So it was a great feeling. I think what I really hope, and what even Hockey India and Bengal Hockey hope, is that this will kind of bring back a lot of youngsters, both boys and girls, to come and take up the sport of hockey. Because now hockey provides equal opportunity like cricket, like kabaddi, like football. And I can say one thing, that Hockey India doing a tremendous job. Starting from the Hockey India League is one example. But if everybody sees the FIH Pro League that is going on, a lot goes on in organizing those as well. I'll ask Dilip Bhai, because Dilip Bhai has to leave in the next 10 minutes because he's got a flight. So I'll ask him a question and then I'll go back to Bhola ji and Harman and Shrijesh. What next for you? You said after you became president, ओलंपिक मेडल आपने वो बॉक्स टिक कर दिया है, आपने बोला था हॉकी इंडिया लीग रिवाइवल, वो भी आपने अचीव किया है. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिलीप टिर्की? प्रॉमिस करिए, हेडलाइन दीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए. प्रॉमिस के हिसाब से इंडियन टीम परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. और अभी एचएल को और मजबूत करना है. एचएल को जैसे राहुल जी ने कहा, और हमारा एक एम है, भोला जी सेक्रेटरी हमारे हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि एचएल को वर्ल्ड के बेस्ट लीग बनाना है. जहाँ इस वक्त भी वर्ल्ड के बेस्ट लीग एचएल है. और जिस हिसाब से एचएल में हर एक टीम ने खेली, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेंस और वुमेंस. और हम इसमें देखिए, और इम्पोर्टेंट बात ये रहा
कि वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग पहली बार हुआ, जो कि वो भी वर्ल्ड के बेस्ट लीग में मैं मानता हूँ। एंड जो आपने किया एक साथ किया, जो इंडियन क्रिकेट भी नहीं कर पाया है, हाँ, ये तो ऑन दोनों। रिकॉर्ड है। यू Yes, स्टार्टेड दोनों साथ टुगेदर में। व्हिच इज नॉट इवन दैट इन सो क्रिकेट। हमारा मकसद है, हॉकी इंडिया का मकसद है दोनों लीग को वर्ल्ड का बेस्ट लीग बनाना है, और आप लोगों के सपोर्ट से होगा। आप जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि और भी फ्रेंचाइजी जुड़ना चाह रहे हैं हॉकी के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो और भी आना चाह रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि हॉकी के फ्यूचर हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है 2013 से 2017 तक जो हॉकी इंडिया लीग चला, उसमें कई सारे यंगस्टर उभर के आए, उसमें से हरमन, उसमें मनप्रीत, उसमें मनदीप, बहुत सारे प्लेयर, अमित रोहिदास, आज के जो स्टार हैं, आज के जो लेजेंड हैं, उसी लीग से उभर के आए हैं। और इस लीग में भी हमने देखे कई सारे यंगस्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी जो हैं, हर एक टीम में 8 मेंबर रह रहे हैं, और उनके साथ रहना, उनके साथ प्रैक्टिस करना, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो ये बेनिफिट है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रासरूट प्रोग्राम हॉकी इंडिया बहुत डीपली इसको ले रहा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हॉकी हमारे सब जूनियर बच्चे हैं। तो इसलिए हॉकी इंडिया ने डिसाइड किया है कि अंडर 17, अंडर 19 इंडियन टीम बनाएंगे। हम विश्वास करते हैं, हम जब तक रेस्पेक्ट नहीं जाके, जब तक हम खिलाड़ी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे और उनका क्रेज उसमें उतना नहीं बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए और हम लोग डिसाइड किए हैं कि अंडर 17, अंडर 19, हमारे पास अंडर 21 है, उसका रेगुलर ईयरली उसका नेशनल प्रोग्राम चलता रहता है। हमारे पास सीनियर टीम का है ही है। अंडर 17, अंडर 19 का कैसे होल ईयर उनका प्रोग्राम चले, जो सिलेक्टेड बच्चों का सिलेक्ट होके आएंगे और हमारे नेशनल प्रोग्राम होल ईयर चलेगा। Wonderful. सो इस चीज़ों में अब हम ध्यान दे रहे हैं। Before you go, last question to you, and I know you got to leave. You said 5:30, it's 5:29. So I've got a minute. I'll give you a couple of minutes, and I know you've got to go to the airport. You were one of the best players that we had. 415 caps ऐसे नहीं होता है. Now you are the president of Hockey India. कौन सा ज़्यादा difficult है, इंडिया के लिए खेलना या गवर्न करना? देखिए, जब खेल रहा था, एक सेकंड, आप पॉलिटिशियन भी हो, पॉलिटिशियन का आंसर मत देना। जब खेल रहा था काफ़ी अच्छा हॉकी खेलने की कोशिश किया, और काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे मैच में हमें अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, और जीते भी हैं, हारे भी हैं। रिग्रेट इस बात का रहा है कि हम ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप में मेडल जीत नहीं पाए। एशियन लेवल में हमने बहुत अच्छा, यहाँ बीरेन रस्किना भी हैं, हमारे बहुत अच्छा मिडफील्डर थे, मेरे ख्याल से वो भी सहमत होंगे कि कोच के हिसाब से हरिंदर भी कई साल तक थे, और श्रीजेश भी के साथ भी हम लोग गुजारे हैं। और मैं श्रीजेश का मैं एक बताता हूँ, जब PHL स्टार्ट हुआ, फर्स्ट PHL, और आपको ये भी बात मैं बता देता हूँ, इंडियन स्पोर्ट्स में मैं हमेशा कहता हूँ, इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे पहला लीग है हॉकी, PHL, प्रीमियम हॉकी लीग। उसके बाद फॉलो किया है क्रिकेट और डिफरेंट। तो PHL में मैं हैदराबाद के कैप्टन था, और श्रीजेश उस टाइम कभी यंग था, और हमारे प्लेयरों को वार्म अप करा रहा था। उस टाइम हमारे आलम थे पाकिस्तान के, वो हमारे टीम के लिए खेल रहे थे। सो श्रीजेश नए आया हुआ था और काफ़ी यंग था, लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक के साथ, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करता था। सो मेरे ख्याल से आज उनका जो सिंसियरिटी आज यहाँ तक पहुँचाया है। सो इसलिए दूसरी बात, हॉकी जब तक खेला मैंने एंजॉय किया, लेकिन हाँ, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि रियली इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी खिलाड़ियों के लिए, और इसमें उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट। खेलना इजी है, एक फेडरेशन को रन करना काफ़ी मुश्किल है, अभी मुझे समझ में आ रहा है। ढाई मिनट आपने बोल लिया था पॉलिटिशियन होने के नाते, गोल, फाइनली आपने आंसर दिया। क्योंकि अभी इस वक्त मैं खुश हूँ काफ़ी, क्योंकि अभी 41 के बाद
टीम इंडिया 4-5 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस जो किया है, क्योंकि बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल की बात करते हैं हम। उसके बाद 2023 एशियन गेम्स में पाकिस्तान को 10-2 से बीट किए हैं, और फाइनल में मेरे ख्याल से जापान को 5-1 से बीट करना और इजीली एशियन गेम्स जीतना। ओलंपिक्स में हमारे पूल में सबसे टॉप टीम था ऑस्ट्रेलिया, ओलंपिक्स के मेडलिस्ट टीम, बेल्जियम मेडलिस्ट टीम, और ऑस्ट्रेलिया के 54 साल के बाद बीट करना। करेक्ट। और फाइनल पहुंचना इंग्लैंड के साथ मेरे ख्याल 43 मिनट्स, और बीच में 2-3 मिनट्स के लिए भी एक ग्रीन कार्ड से भी प्लेयर निकल गए थे। मेरे ख्याल 9 प्लेयरों के साथ खेल के मैच जीतना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल। और सेमीफाइनल में यहाँ तक कि हमें जर्मनी के साथ जब हम खेलने में मेरे ख्याल से हम लोग उस दिन हमारा 13 या 14 शॉट पर मिला था, हो नहीं पाया। सो उनसे बेटर हम लोग हॉकी खेले थे, यानी कि हम गोल्ड मेडल जीत सकते थे, ये भी टीम ने कॉन्फिडेंस दिलाया था। सो प्रेसिडेंट होने के नाते हम काफ़ी कुछ देखा है। मेडल जो जीत के लाए उसमें काफ़ी हम खुश हैं, लेकिन जब प्लेयर के हिसाब से जब मेडल जीत के नहीं पाए थे, इस बात का हमें रिग्रेट है। चलिए दिलीप भाई, ऑन दिस नोट जाने से पहले दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाइए और लॉस एंजलिस में जो भोला साहब ने कहा वो गोल्ड मेडल भी दिला दीजिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज गॉट टू लीव। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिलीप तिर्की। शर्मिष्ठा गुप्तू, may I please request you to give Dilip bhai his gift outside so that he's got to leave. So he's got a flight to catch and I can't hold him because the flight is at 7:30. The rest of us will continue. भोला साहब, ये जो दिलीप भाई अभी कह रहे थे, आपने बहुत क्लोजली इन दोनों के साथ, तीनों के साथ काम किया है। हमें कुछ तो बताइए जो हम देख नहीं पाते हैं, मीडिया में सब कुछ आता नहीं है। हरमन, श्रीजेश, एक स्टोरी तो बताइए इनके बारे में, थोड़ा सा जो बैक स्टेज में करता है, शरारत करता है, बदमाशी करते हैं, मजाक करते हैं। श्री के पास तो 50 तो स्टोरी होगा, मैं उनसे भी पूछूंगा, बट पहले आप तो बताइए आपका कैप्टन और कोच, बेस्ट गोलकीपर एंड कोच के बारे में। भोला साहब। नहीं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा लड़का है। पहले तो इसको कोच बनाए थे तो कुछ देख के बनाए थे कि जब आप पहले देखते होंगे इंडिया के जब 1-2 मिनट बचता था उसी समय गोल खाता था। करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद सिरजेश को बाहर कर दिया जाता था, मनो गोल की बाहर, इनके जगह पर एक खिलाड़ी आ जाते थे। तो सिरजेश को मैं देखता था फिर कोचिंग करते हुए, फिर एक कोच के साथ ये भी कोचिंग करते थे। अच्छा। तो वो मेरे नज़र में था कि ये कोच अच्छे हो सकते हैं, आखिरी समय में ये अच्छा कोचिंग देते हैं। सर आप तो, दिलीप भाई को इलेक्शन पॉलिटिशियन आप भी उतना ही अच्छा बन सकते हो, मैं बोल रहा हूं आपको। एकदम फैक्ट सच्चाई बता रहा हूं। मैं पहलवान हूं, मुझे पहलवान कैप्टन चाहिए था। जो दिल से मजबूत हो, मन से मजबूत हो, हर एक चीज से मजबूत हो, ग्राउंड में सामने वाला को सामना उसी मजबूती से करे। क्या आंसर है बॉस, अनबिलीवेबल। तो मुझे वैसा कैप्टन चाहिए था, मैं इसको कैप्टन बनाया। मेरे लाइफ का, मैं बहुत सच्चाई से आपको एक चीज अपने, मेरे लाइफ का, मैं 84 से खेला 96 तक, 84 से 96 तक मैं खिलाड़ी रहा। 97-98 में मैं NIS किया, उसके बाद कोच हो गया। 2001 में मैं झारखंड कुश्ती संघ का महासचिव बन गया, और 2002 में मैं इंडिया टीम का कोच बन गया, चीफ कोच। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया रेसलिंग का। आप समझिए सभी चीज़ में बोल रहा हूँ। हॉकी झारखंड में आ गए, हॉकी इंडिया के महासचिव बन के आपके सामने आज बैठे हुए हैं। मगर जितनी निराशा हमको जब मेरी ओलंपिक में वुमेन टीम क्वालिफाई नहीं की थी ना, उतना निराशा मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुआ था। मेरे लिए सबसे निराशा का दिन, मैं आपको सच में बताता हूं, मैं 1 माह ढंग से खाना नहीं खाया था कि आखिर इतना करने के बाद, इतना सारे फैसिलिटी देने के बाद, चाइना से ओलंपिक क्वालिफायर को छीन के इंडिया में लाना, और उसको रांची में जहां फुल क्राउड के बीच में जहां ये है, वहां पर मैं लेके आया कि नहीं, हमारे बच्ची लोग, मेरी बिटिया लोग अच्छा खेलेगा, ये करेगा। बच्चे लोग अच्छे खेले थे, ये नहीं कहूँगा कि नहीं अच्छे खेले थे,
बस यही कहता हूं कि वो दिन मेरा नहीं था, वो समय मेरा नहीं था, उस दिन मेरे बच्चों का दिन नहीं था। स्पोर्ट में होता है, स्पोर्ट में भोला साहब वो- कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद ही मेरे को नजर आया था इन महानुभाव पे, ये अमेरिका को बढ़ा रहे थे इंडिया को छोड़ के। मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूं, इसको अदर नहीं। ये इंडिया को छोड़ के ये अमेरिका को चले थे तरक्की कराने, तो हम बोले कि भैया इंडिया आ जाओ, यहीं की तरक्की करो। तो आपने उनको पैसा ज्यादा दिया ना, आए? आपने उनको पैसा ज्यादा दिया ना। देखिए, आप लोग के आशीर्वाद से हॉकी इंडिया में पैसा कोई माने नहीं रखता है, जो जितना मांग दे देते हैं। अरे वाह, वेरी आपके ये जितना मांगे दे दिए, ये भी बगल में है जितना मांगे दे दिए। बोरे भाई, वो ये सब चीजें कोई ये नहीं है, वो आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से, ऊपर वाले की ये से उतना भगवान हॉकी इंडिया में पैसा ऑटोमेटिक दे देता है कि नहीं ये आदमी काम करने वाला है, ये है, इनको दो। अनंतर भाई, बिफोर आई गो, यस, बिफोर आई बोरे भाई, गो, मैं एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ, और वो हो सकता है कि आपके लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, फॉरेन कोच को छोड़कर इंडियन कोच की सैलरी का हॉकी इंडिया ने ब्रेक किया है रिकॉर्ड, मेरे को सैलरी देकर, वेरी इन प्लीज्ड, एनी स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट को छोड़कर। मैं आज आपको बता रहा हूँ। very pleased, and you deserve it. Why you? No, I Shitesh don't deserve- know. everybody. Indian coach deserve coaches, it. exactly. Indian coaches deserve it. This whole idea that our coaches will be paid less is a disgusting idea. And credit goes to him. I know how he fought in ministry, Sai and Hockey India. Fantastic. Yes, Rahul. Before I go just to the like two to of them. add जो sir ने where we are hinting, and even if you look at the HIL strategy and inspired by this, I think most of the franchisees spent more on the Indian players than on the foreign players. I mean, if you look at it, I mean, I can't Yeah, claim yeah. the full credit alone, Highest but paid 78 lakhs, Harmanpreet Singh. and True. I mean, I paid a lot of money for Abhishek and then all. 72 to Abhishek and yes. Jugraj. And Jugraj, yes. So if you look at it compared to the foreign players, it was not. And the same thing. I mean, we worked with Indian coaches and foreign coaches, and at least in the franchisees, the experience was equal. So there is no fascination, at least going forward.